पश्चिम बंगाल में हर 100 लोग रह रहे हैं ना, उसमें एक सीआरपीएफ का बंदा तैनात है। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव सीईसी और सीएपीएफ लड़ रही है ममता को हराने के लिए। आपने कभी देखा किसी भी चुनाव में, हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए, किसी चुनाव में ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। और 27 लाख वोटर, जिसमें से कई जेन्युइन वोटर होंगे, वो अपना वोट नहीं डाल सकते। और साथ-साथ में जो ट्राइब्यूनल के मामले हैं, ट्राइब्यूनल काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि ट्राइब्यूनल अंदर जाने के लिए रोक लगाई जा रही है। वहां जो सिक्योरिटी खड़ा है वो कहता है जब समन्स आएगा तभी हम तुम्हें जाने देंगे। उसके पास दस्तावेज हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन जाने नहीं दे रहे। तो ये किस किस का चुनाव है? भाजपा जिताने के लिए चुनाव है? चुनाव में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सरकार चुनाव नहीं लड़ती। और यहां तो सरकार चुनाव लड़ रही है। अभी देखो सूरत से क्या हुआ, आपको याद होगा। मैं हरियाणा से, सोनीपत से, करनाल से लोग भेजे जा रहे थे स्पेशल ट्रेन में। मैंने उसका खुलासा भी किया आपके सामने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह से गुजरात से जा रहे हैं लोग, सूरत से 5000 लोग। वहां रेलवे स्टेशन में, जो मेरे ख्याल जिसका नाम है उधना रेलवे स्टेशन में, 23,000 लोग थे जो गुजरात से वापस उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जा रहे थे। वहां तो बेटन चार्ज हो गया फोर्स का, उनके लिए ट्रेनें नहीं चली, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन 5000 लोग की चली। और ये स्टेट मशीनरी है ना। अगर रेलवे विभाग भाजपा के लोगों को स्पेशल ट्रेन में भेज रहा है तो अपने आप में वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। लेकिन कौन सुनेगा? इलेक्शन कमीशन तो इनका वैसे ही चुनाव लड़ रही है, तो इलेक्शन कमीशन तो सुनेगा नहीं, और कोर्ट में कोई जा नहीं सकता। It is shocking. It seems that there is an emergency that is imposed in the state of West Bengal outside the Constitution of India. In this emergency, 2,400 platoons of CAPF have been placed there. 2,400, which means 2.4 lakh people of CAPF, which means for every 100 people in West Bengal, one person of CAPF will be taking care of them. So it seems that the BJP is not fighting this election. It seems that the CAPF and the Election Commission is fighting this election. Gross abuse of state machinery. I mean, these number of CAPF people would not be there in Jammu and Kashmir. They are in West Bengal. And while violence is going on in Manipur, as you know, on that violence, the CAPF is actually, security forces have been moved to take care here about what is happening to our country. And everybody is quiet, no institution is responding. And do we expect the Chief Election Commissioner to respond? They are the ones who are fighting the election of the BJP. And look at the 5,000 people that have been sent from Surat, from Udana police station. 23,000 people, passengers, were waiting to go to Odisha, to
Uttar Pradesh, to Bihar. But these are migrant workers who go back home, and especially in the context of the shortage of gas and other things, many of them are going back home. They don't have trains. There they use batons at the police station to deal with them. And here a special train of 5,000 people, supporters of BJP, are flagged appropriately, timely manner, so that they reach. What else is it? Is misuse of the state machinery. And who do we complain to? CEC is in collaboration with them, in cahoots with them. Who do we complain to? इतने लोग तैनात जम्मू कश्मीर नहीं हुए होंगे जितने उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में है। मणिपुर में हादसा चल रहा है, वहां कोई इंतजाम नहीं है, और भाषण यहां हो रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं कि अगर तुम इस समय ये ठीक ठाक हमारे लिए वोट नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल वही होगा जो योगी उत्तर प्रदेश में करता है। ये उन्होंने ये बयान दिया है। वो क्या होता है, या तो बुलडोजर चलेगा, और या आपको मालूम है कुछ और होगा। उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सभी लोगों को मालूम है। I mean, Shubhendra Adhikari is saying shamelessly that if you vote for TMC and if you want to make us not win this election, then what will happen to you is the way Yogi Adityanath deals with you. Deals with people in Uttar Pradesh. Either bulldozer or, you know what I mean. You all know that. And look at the bhashan. हमारा होम मिनिस्टर कहता है, दीदी ओ दीदी, what is this the way to conduct yourself? You're the home minister of the country. You're organizing the CAPF, you're organizing all this. If the defense minister, home minister, prime minister, everybody is there. All other ministers are there. Chief ministers are there. And the kind of भाषण they are giving is unbelievable. होम मिनिस्टर वहां है, प्रधानमंत्री जी वहां है, डिफेंस मिनिस्टर वहां है, जो चीफ मिनिस्टर है राज्यों के वो वहां है। और ऐसा मतलब लगता है कि एक मतलब कि उनको जैसा कॉर्डन ऑफ कर लिया होता है। कभी होता था ना पुराने जमाने में, जब वर्कर मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग होती थी तो एम्प्लॉयर को घर से बाहर नहीं आने देते। तो वही हाल है पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का, कि इनको जिनको वोट करने वाले हैं टीएमसी, उनको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, और जो बाहर के लोग आए हैं उनको घर से बाहर, तो घर से उसको वोट देने देंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की जो बात करते हैं, तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तो खुद सीईसी है। वो ना वो लॉजिकल है, हर चीज में, हर कदम पे उसकी डिस्क्रिपेंसी है, हर बयान में उसकी डिस्क्रिपेंसी है। मुर्शिदाबाद में वोट काट दो, मालदा के वोट काट दो, 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना के वोट काट दो, साउथ 24 परगना के वोट काट दो, सारे टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां वोट काट दो, और 55% वोट काटो लाखों की तादाद में। मुर्शिदाबाद में तो 11 लाख वोट कटे हैं, 11 लाख। मालदा में सुना है कि 8 लाख वोट कटे। किस किस्म की राजनीति चल रही है मोदी जी? और वही एक महिला आपके सामने खड़ी है, और महिलाओं के बारे में जितना आप बात करते हो, उस महिला के खिलाफ आपने ये सब कर लिया है। मतलब कि हिंदुस्तान की सारी ताकत लगा दी, और सब चुप, संस्थाएं चुप। ये बहुत ही खतरनाक बात है लोकतंत्र के लिए। I mean, the entire strength of the country is being used for the official strength, is being used to destabilize the environment in West Bengal. And where does the Chief Election Commissioner get these powers from? 483 officers have been transferred. 483 officers. 483 लोगों की ट्रांसफर हुई है।
ये कहां से पावर आई हैं? वो अनलिमिटेड पावर तो किसी के पास नहीं होती। कोई ऐसा अधिकारी है या कोई ऐसा मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर भी है, किसी की अनलिमिटेड पावर हो, किसी की कोई सीमा ना हो पावर की। There is nobody in this country which has unlimited power. And what are you using? Logical discrepancies. In other words, if there is a less than 15 years age difference between the father and the voter, delete it. It is more than 50 years age difference, delete it. And all this is done through AI. Incidentally, there is no inspection. All this is done through AI. अगर वोटर का और माता पिता का 15 से कम आयु का डिफरेंस है तो वोटर कार्ड दिया जाएगा, और 50 साल से ज्यादा है तो वोटर कार्ड दिया जाएगा। और ये सब एआई से हो रहा है। In fact, it is the Election Commission who is the logical discrepancy in this country. Nothing that he says is logical. And his discrepancy is stamped all over what is happening in West Bengal. It is a shame that we have an election commissioner of this nature. It is an absolute national shame. That's all that I can say. And it is also a national shame that nobody is doing anything about it. Now see what is the latest that has been done. And I will tell you that. It is shocking that the new directive that has been issued, new directive is that Election Commission of India has banned motorcycles in West Bengal from 6 p.m. to 6 a.m. in the two phases of the polling. First phase, of course, is 23rd, second is 29th. And evacuation of all tourists and outsiders from the seaside resorts of Digha, Mandarmani, Tajpur, Udaipur, and Shankarpur. Now, if a young girl wants to travel on a motorcycle with her boyfriend, can't do it. Is this part of ECI's power, Election Commission of India's power, that you prevent fundamental rights of people? I mean, this is shocking. Except for medical emergencies, family functions, essential emergencies, dropping or picking up of school children. But in order to be the exception, you have to file an application. किसको applicate? अब इन्होंने क्या किया है? Who will you get this application to? And who will decide? When will you decide? अब अभी आदेश किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई मोटरसाइकिल 2 लोगों के साथ नहीं रहेगा। एक ही पिलियन कोई नहीं होगा, उसके पास सब पीछे बैठेगा नहीं। तो अगर कोई महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है वो भी नहीं बैठ सकती। ये क्या इलेक्शन कमीशन का कोई संवैधानिक हक है? हाँ? और इसमें कोई एक्सेप्शंस भी हैं कि भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, एग्जाम्पशन लेनी पड़ेगी। कोई बच्चों को स्कूल छोड़ना तो एग्जाम्पशन लेनी पड़ेगी, कोई फैमिली फंक्शन हो तो एग्जाम्पशन लेनी पड़ेगी। और लेकिन वो एग्जाम्पशन तो लिखित रूप में होगी। वो कौन फैसला करेगा, कब फैसला होगा, किसको लिखित में आता है, नहीं आता। देहात का कोई जाना चाहता है, 2 लोग जाने चाहते हैं तो नहीं जा सकते। और जो साथ साथ में ये भी लिखा है कि टूरिस्ट रिजॉर्ट्स जो हैं, सीसाइड रिजॉर्ट्स हैं, दीघा में, मंडरमणि में, ताजपुर में, उदयपुर में, शंकरपुर में, वो सब इवैक्यूएट हो जाएंगे, वो जाना पड़ेगा। तो ये कोई संविधान में कोई ऐसा लिखित है
कि आप लोगों के संवैधानिक हक दखल अंदाजी करो। ये कौन सी पावर हुई? What is this kind of power under Article 324 of the Constitution? Article 324 की ये कौन सी पावर हुई? और साथ साथ में ये पहली बार हुआ है, कभी पहले नहीं हुआ। And people are completely clueless as to why this has happened. Anyway, this is the state of our country. और वो स्विगी के लोग भी कहते हैं कि साहब हमें कुछ चीज ले जानी है किसी के लिए, ऑर्डर पे जा पाएंगे कि नहीं? जोमाटा के लोग भी कहते हैं कि क्या होगा, हमारा धंधे का क्या होगा? तो इनका तो धंधा इलेक्शन जीतना है ना, ये इनका धंधा है, ये इलेक्शन नहीं है। It is their vocation to make sure that CAPFs, it is the chief election commissioner's vocation to make sure that the BJP somehow wins this election. Couple of things more and then I have done. These are very interesting. अब देखो 700 ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, उन कोई काम नहीं कर सकता। 91 लाख वोटर डिलीट हुए थे। 91 लाख वोटर, जिसमें से 60 लाख बचे, उसमें 55% को वोट देने दिया। 60 लाख में से 32 लाख अलग हो गए, 27 का तो अभी फैसला नहीं हुआ, तो 32 लाख में से 55 लाख वोटों को वोट देने दिया। बाकी ट्राइब्यूनल में है, उनकी अपील चल रही है, और ये 27 लाख का फैसला नहीं है। तो अगर वही तुलना की जाए 55% टू 45%, तो 27 में भी 55% तो होंगे ना जो वोट कर सकते हैं, उनको तो आपने बंद कर दिया ना। इट इज therefore it's an exercise in disenfranchisement. It is not an exercise in allowing people to vote. It is destroying willfully, knowing full well that a large percentage of people out of this 27 lakhs will have a right to vote, but they can't vote. I mean, what is happening? And I mean, people like, ठीक है, आप सड़कों के नाम चेंज कर दो, लेकिन इतिहास में भाषण तो नहीं चेंज करो। अब योगी जी के भाषण ने कहा है कि विवेकानंद ने कहा था कि आप खून दोगे तो मैं आजादी दूंगा। वो विवेकानंद ने कहा ही नहीं था, ये तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अब इनको इतिहास का नहीं मालूम, इनको संविधान का नहीं मालूम, इनको बुलडोजर चलाने का सब कुछ मालूम है। किसी का वोट काटना है, कैसे काटना है, सीएपीएफ का कैसा इस्तेमाल करना है, वो सब मालूम है। फ्रॉडुलेंट तरीके से चुनाव जीतना है, वो मालूम है। ये उनका पेशा है। ये पेशा उन्होंने हरियाणा में भी अपनाया, ये महाराष्ट्र में भी अपनाया, बिहार में भी अपनाया, और पश्चिम बंगाल में। बट पश्चिम बंगाल तो हद कर दी ना, क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी ना बिहार में इस्तेमाल हुई, ना पहले इस्तेमाल हुई, तो पहली बार इस्तेमाल हुई। They never used logical discrepancy argument or use of this particular way of disenfranchising people. Either in Haryana or in Maharashtra or in Bihar, they're using it for the first time here. And for what purpose? And Yogi Adityanath, he makes a speech. And he says that Vivekananda said that if you give me your blood, I will give you freedom. You can change the name of streets, you can change the syllabi of children's books. I can understand that, but don't at least change, the historic events in history. It was never said by Vivekananda. It was said by Subhash Chandra Bose. But Yogi Adityanath only knows one thing, not history,
but bulldozers and of course everything else that we hear about. So that's the way it is. This is the state of our country. God bless this country. God save this country. Ask my questions. Uh, given the facts, but what you have seen, जो बोला, उस पे क्या लग रहा है कि बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है 23 और 29 को, कितना फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन कमीशन बोले जा रहा है, कितना फेयर होगा? और अगर नहीं हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई This is जगह a है? fraud played on the Constitution of India. संविधान के मतलब के संविधान पे एक हमला है, एक आक्रमण है, और सब नजरअंदाज कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? कोई वे आउट कुछ हो सकता है? वे आउट तो देखिए ना, एक मतदाता है, वो तो वोट ही करने जाता है ना, और आप लोग हो, आप रिपोर्ट ही करते हैं। फैसला तो कोई और करता है ना, और जब फैसला करने वाले ही फैसला नहीं करें तो कहाँ जाए? फिर तो हम वो गाना याद करेंगे ना, जाने तो जाए का, समझेगा कौन जाए। सर, इलेक्शन कमीशन आपने जो लिस्ट पब्लिश किया है, अभी तक 138 का अरे इतना ज्यादा, मतलब 27 लाख में से 138, हम तो शाबाश बोलेंगे, कमाल हो गई। इतना ज्यादा वोट, मतलब के लिस्ट में नाम आ गए 138। बात ये है में से 136 अलाउ हुआ है, फिर 2 रिजेक्ट हुआ। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि आगे जो जुडिशियल ऑफिसर थे वो कैसे काम कर रहे हैं? 36 अलाउ हो, 136 अलाउ हो गया। नहीं, आपको सवाल पूछना चाहिए कि ये हुआ क्यों। जुडिशियल ऑफिसर तो इसलिए लगाए गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन सही तरीके से काम ही नहीं कर रही थी, तो बेचारे जुडिशियल ऑफिसर को क्यों दोष करते हो? जो बुनियादी बात है वो तो इलेक्शन कमीशन का दोष है ना, उसके ऊपर कोई बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन को तो या मतलब के गवर्नर बनना होगा या कुछ और बनाना होगा, उसको कर रहा है भाई अपने। आज के अधिकारी तो मतलब के उनकी तो रणनीति थोड़ी अलग होती है ना। सर अभी इलेक्शंस के बाद और स्पेशल ट्रेन चलाने का ट्रेंड शुरू हुआ पिछले 2 दिन पहले। आपको लगता है कि ये भी एक तरह का स्कैम? स्कैम की क्या बात है? असंवैधानिक, ये तो मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। तक भी अगर स्टेशन साहब यहाँ होते तो इलेक्शन ही रद्द किया होता। ये कौन सा हक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो पिलियन पे नहीं वो बैठने देंगे, इस समय नहीं बैठने देंगे, उस समय? ये कौन सा अधिकार? नो राइट ऑफ इलेक्शन। सर, जब आप ये बात उठा रहे हैं, पहले यही बात जब आपने भी उठाई, यही बात अरविंद केजरीवाल ने अभी तक पूछ तक के कही, जो ममता बनर्जी से बात करी है और तो क्या कोई विपक्ष की साधा रणनीति बननी चाहिए इस पे? क्योंकि जिस तरीके से ऐसे यानी वोट काटे गए, और पिछले चुनावों के अंदर बीजेपी और टीएमसी के बीच में कई सीटों पे विनिंग डिफरेंस जो था 10 से 15 हजार का ही, और जो वोट डिलीट हुए हैं, ऐड भी हुए हैं, जो ऐड हुए हैं और डिलीट हुए हैं, तरीके का नंबर उस पे चुनाव पे असर पड़ेगा क्या? और क्या कोई ज्वाइंट अपोजिशन की कोई ज्वाइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके ऊपर, जो आगे इस चीज पे भी? देखिए, ऐसा है कि भाई इस समय तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ही मुझे जो फीडबैक हमें मिल रहा है कि डिस्पाइट ऑल दिस ममता जीतेगी, महिला जीतेगी, और जो महिलाओं पे आक्रमण करते हैं वो हारेंगे। सर, एक और सवाल था कि कल राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को आतंकी कहा। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई दी, लेकिन बीजेपी अब मान रही है कि चुनाव आयोग उसके ऊपर एक्शन ले, और आज कई केंद्रीय मंत्री उसमें निर्मला सीतारमन ये शामिल है, तो आज चुनाव आयोग की जाकर गुहार लगाई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का इंसल्ट किया है और उनको साफ तौर पर आता है। कैसे एक्शन होना चाहिए तो किसी डिसाइड करेगा, और कई और बयान जो विपक्ष के लोगों, सत्ता पक्ष के लोगों के आए हैं, और उन पे कोई ध्यान करेगा? इसी इन्होंने तो अब सफाई दे दी है कि कहा था, मैंने तो बोला ही नहीं था। मैंने क्या बोला था कि जो
आपकी ईडी है, जो सीबीआई है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग पे टेरर फैला रहे हैं। ये उन्होंने बोला था, ये एक्सप्लेनेशन दी थी। तो इसमें क्या एक्शन लेने का सवाल है? ये देखो ऐसा है ना, इनको मालूम है कि ईसीआई इनके पॉकेट में, जो ये चाहेंगे ईसीआई करेगा, और इनके खिलाफ ईसीआई कुछ करेगा नहीं। तो ये भी एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। और जो प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया नेशन को, उसको लेके विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के साथ सांसद एसडी गोपाल ने प्रिविलेज का मोशन जो है मूव किया है। प्रधानमंत्री ये तो ऐसा है ना कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी प्रिविलेज है टू मूव द मोशन, लेकिन जो प्रिविलेज मोशन है वो कहाँ इस पे कुछ कार्रवाई होगी? आपको मालूम है, अब सवाल तो ऐसे पूछते हो, जवाब आपको मालूम होता है। थैंक यू।